ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ ਆਈਸੋ ਵੋਲਿਊਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਡਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋ ਵੋਲਿਊਮਿਕ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋਕੋਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਈਸੋਬਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਰਕ ਡਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੋਲ ਆਫ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਰਕ ਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ V1 to V2 PdV। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਡਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ dW ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ PdV। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ FDX ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ dW ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ PdV ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਲਿਸਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਈਸੋ ਵੋਲਿਊਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਆਈਸੋਕੋਰਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, the process which occurs at constant volume। ठीक है, तो for isovolumic process की होएगा V is equal to constant। देखो जी वर्क डन वॉल्यूम जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। जे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ਦੇ ਵਿੱਚ जो चेंज है dV दैट इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ठीक है, जे ਅਸੀਂ dV ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਵਰਕ ਡਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਆਈਸੋ ਵੋਲਿਊਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਅਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਡਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 0 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕ ਡਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਸਟਨ ਅਪ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਆਈਸੋ ਵੋਲਿਊਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ ਆਈਸੋਬਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। A process which occurs at a constant pressure। यहाँ से इस तरह कह सकते हैं कि P is equal to constant। जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, तो वर्क डन किस दे इक्वल है? वर्क डन है जी फ्रॉम V1 to V2 PdV। ਹੁਣ देखो जो प्रेशर कांस्टेंट है तो टेक प्रेशर आउटसाइड, ਅਸੀਂ प्रेशर ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਜੀ dV, ਤੇ dV ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? dV ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ V। ठीक है, लिमिट्स आ गई जी V1 to V2। लिमिट्स पुट करो, ये हो गया जी P इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, तो बहुत सिंपल है जी आइसो वॉल्यूमिक ते आइसो बारिक प्रोसैस दे विच वर्क डन जो है कैलकुलेट करना। देखो आइसो बारिक दे विच प्रैशर जो है वो कॉन्स्टेंट है, उसनों वॉल्यूम की चेंज ना मल्टीप्लाई कर दियो बस। इनिशियल वॉल्यूम तो लैके फाइनल वॉल्यूम तक जिन्ना वॉल्यूम चेंज होया तो वो साढ़े को वर्क डन है, क्योंकि प्रैशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन तो बाहर आ जाएगा। तो इहदे विच तां dV ही 0 है, वॉल्यूम की जो चेंज है दैट इज 0, तो जे dV 0 है तो वर्क डन इज 0। नो वर्क इज डन आइसो वॉल्यूमिक दे विच। ठीक है जी, ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसैस का जो वर्क डन है उनका भी लैक्चर मैं अपलोड कर चुके हैं। तो चारों प्रोसैसिस के वर्क डन है साढ़े कंप्लीट हो गए। तो नैक्सट टॉपिक के ਅਸੀਂ करते हैं जी PV डायग्राम ਜਾਂ जिस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ इंडिकेट डायग्राम। देखो जी नैक्सट टॉपिक साडा है जी PV डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम। तो PV डायग्राम ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ रिप्रजेंट कर सकते हैं किसी प्रोसैस ਨੂੰ। सपोज करो कि जे ਅਸੀਂ इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ एक प्रोसैस ਨੂੰ रिप्रजेंट कर रहे हैं तो इनके ऊपर एरो लगा रहे हैं, इट मीनस ये प्रोसैस जो है A पॉइंट A स्टेट तो B स्टेट तक जा रहे हैं। जो ए स्टेट है ए स्टेट ते इसका जो प्रैशर है उसको असी P1 नाल रिप्रजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो बी स्टेट ते जो प्रैशर है उसको असी P2 नाल रिप्रजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके नाल ए स्टेट दे विच जो वॉल्यूम है उसको V1 नाल रिप्रजेंट करते हैं, तो बी स्टेट ते जो वॉल्यूम है उसको V2
2 ਨਾਲ रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ए पॉइंट के जो कोआर्डीनेट्स है वो P1 V1 हो गए जी, तो बी पॉइंट के जो कोआर्डीनेट्स है वो P2 V2 हो गए। देखो जी प्रोसैस A टू B जा रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है कि प्रेशर P1 टू P2 डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस जा रहा है जी फ्रॉम ए मतलब P1 B1 टू B P2 V2, ठीक है। इट मीनस एक ही है जी एक्सपेंशन, ठीक है, कि जो सिलेंडर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਅਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਕਹੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰੋਮ V1 ਟੂ V2 ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰੋਮ P1 ਟੂ P2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਰੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। मतलब जे प्रोसैस जा रहा होवे फ्रॉम P2 V2 टू P1 V1 तो ये की होएगा जी एक कंप्रेशन होएगा। जे प्रोसैस B टू A जावे जी तो प्रेशर इनक्रीज कर रहा फ्रॉम P2 टू P1 तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा फ्रॉम V2 टू V1, ठीक है, तो ये कंप्रेशन है जी। फिर ਹੁਣ इस डायग्राम ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ वर्क डन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो वर्क डन फ्रॉम द पीवी डायग्राम किस तरह से कैलकुलेट करना है। देखो जे इस डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ V1 ਟੂ V2 ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਸਮਾਲ ਜੀ ਚੇਂਜ ਅਸਿਊਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਿਊਮ। ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ dV, ਇਹ dV ਚੇਂਜ ਹੈ ਜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ dV। ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ दैट इज ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ P, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫॉर ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਿਊਮ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ dW ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ PdV, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ PdV ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ P ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ इस रिकटेंगल की। जे ਅਸੀਂ इसनूं रिकटेंगल अज्यूम करिए इस स्मॉल जे पोर्शन ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ L M N Q ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, P ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ P ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ P ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, P ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ L Q ਜਾਂ M N ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, तो इसकी लेंथ होगी। dV की है जी, dV इज दी ब्रेडथ होगी। तो जो इस रेक्टेंगल की गल ਅਸੀਂ कर रहे हैं LMNQ, तो जो ये पोर्शन है स्मॉल जा एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये किस दे इक्वल हो गया जी, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पोर्शन LMNQ, जिसनों इंटीग्रेट करते हैं ओवर द होल प्रोसेस टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन किस दे इक्वल हो जाएगा, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV करते होंगे जी असी, ठीक है जी, फ्रॉम V1 टू V2 तो ये किस दे इक्वल हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ एरिया ऑफ LMNQ फ्रॉम V1 टू V2, ठीक है जी। जो इसमें इंटीग्रेट करांगे असी इसके छोटे छोटे एरियाज बनावांगे इस तरीके नाल एक होर रेक्टेंगल बनेगी। तो सारिया रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट करके ये साडे कोले पूरे जो एक कर्व है A टू B, तो इस दे अंडर जो सारा ये पोर्शन आ रहा है तो उसके वर्क दे इक्वल हो जाएगा, तो उसके एरिया दे इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। तो जो एरिया में शेड किया मैं दोबारा शेड करके दिखाना दोनों, तो देखो इस दे अंडर जो एरिया आ रहा है सारा, ठीक है, आ सारा एरिया इन अंडर इस दे एरिया दे इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसनों भी असी उस तरीके दे नाल ही भी नंबरिंग कर दें, जिस तरह पहला LMNQ किया तो इसनों कर दें जी इस पॉइंट में B डैश, इस पॉइंट में कर दें जी A डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी इज इक्वल टू एरिया ऑफ B डैश A डैश A, ठीक है। असी A B
B ਡੈਸ਼ A ਡੈਸ਼ A ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਟੋਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਐਲ ਐਮ ਐਨ ਕਿਊ ਜਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਜੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਐਲ ਐਮ ਐਨ ਕਿਊ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਜੀ ਐਲ ਐਮ ਐਨ ਕਿਊ ਐਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਐਲ ਐਮ ਐਨ ਕਿਊ। ਜੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ A ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ A ਤੱਕ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ PV ਡਾਇਗਰਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਪਲਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ P ਤੇ V ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, A to B ਜਾਂ B to A, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾਂ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਦੱਸੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ ਅ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ A ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ P1 V1 ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਥਰੂ ਪਾਥ 1 ਟੂ ਦ ਸਟੇਟ B P2 V2, ਤਾਂ ਫਿਰ B ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਥ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ A ਸਟੇਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਚੇਂਜ 2 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਪਸ ਦਾ ਜੋ ਪਾਥ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਥ ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਥ ਦੇ ਥਰੂ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਜੇ ਇਸੇ ਪਾਥ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਥਰੂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੇਂਜ ਦਾ ਪਾਥ ਹੈ from A to B that is different and from B to A that is different, but ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ P1 V1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ A ਤੋਂ B ਜਾ ਰਿਹਾ from ਪਾਥ 1 ਤੇ B ਤੋਂ A ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ ਪਾਥ 2। तो जो A ਤੋਂ B ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ from V1 to V2, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ 1 ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ठीक है, तो जो पाथ 2 है फ्रॉम B to A इस द वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, कितों इंक्रीज कर रहे हैं जी, चेंज कर रहे हैं फ्रॉम P2 to P1, दिस इज P2 to P1। तो ये जो स्टेप 2 है ये कंप्रेशन है। ठीक है जी, जो 1 है वो एक्सपेंशन है, जो 2 है वो कंप्रेशन। ठीक है, हम असी टोटल वर्क डन फाइंड करना है फ्रॉम A to B एंड B to A, वर्क डन इन साइक्लिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये किस तरह कैलकुलेट करांगे, जैसे पहला A to B का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं थ्रू पाथ 1। तो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, वर्क डन फ्रॉम A to B वाया पाथ 1, इसमें ਅਸੀਂ W1 ਨਾਲ रिप्रेजेंट करते हैं। एक ही होएगा जी इंटीग्रेशन फ्रॉम PTV फ्रॉम V1 to V2, तो किस दे इक्वल होएगी, ये सानू पता है जी एरिया ਦੀ इक्वल ਹੁੰਦੀ है। तो ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੀ इक्वल होएगी, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B तक ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਏਰੀਆ ਆ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੁਣੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਇਸ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ A B B डैश A डैश A इज इक्वल टू एरिया ऑफ A B B डैश A डैश A। ठीक है जी, गिव इट नंबर 1। हुण असीं कैलकुलेट करना है वर्क डन फ्रॉम B to A।
वाया पाथ 2, ठीक है। ये होएगा जी W2 इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम V2 टू V1 ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਏਰੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ जो ए वाला एरिया जी सारा नीचे वाला एरिया, इस दे नीचे एरिया जो B टू A ਦੇ नीचे है, जो मैं वाइट ਦੇ ਵਿੱਚ कर रहे हैं, तो इसमें ਅਸੀਂ लिखांगे जी BA फ्रॉम B टू A जा रहे हैं, एरिया ऑफ BA A डैश B डैश B, मतलब जो मैं वाइट कलर ਦੇ ਵਿੱਚ सारा एरिया कवर कर रहे हैं, ठीक है जी। गल समझ लग रही है। जो पहला मैं ब्लू वाले च कीता सी वो A टू B ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ B टू A ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾय ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾय ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम जो है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव है, ठीक है। इसनों ਅਸੀਂ एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, ਇਹ एक्सपेंशन ਦੇ ਵਿੱਚ वर्क डन है जो साइन कन्वेंशनस ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि जो कंप्रेशन होएगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होएगा, ठीक है। इसनों ਅਸੀਂ कंप्रेशन भी कह सकते हैं, एक कंप्रेशन ਦਾ वर्क डन है, ठीक है। ये की होएगा, ये नेगेटिव होएगा साइन कन्वेंशनस ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਹ वर्क पॉजिटिव होएगा, इसनों ਅਸੀਂ पॉजिटिव लिखांगे, इसनों ਅਸੀਂ नेगेटिव लिखांगे, गिव इट नंबर 2। तो टोटल वर्क डन कितना होएगा, जो टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन होएगा जी W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक है। तो इसमें एरिया टर्म्स ਦੇ ਵਿੱਚ कैलकुलेट करिए तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ B डैश A माइनस एरिया ऑफ A डैश B, मतलब डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰਾ ਜੋ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਈਟ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਜੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲੂਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ A B टू A वाया पाथ 1 टू वाया पाथ 2, ठीक है। तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ लूप दिस साइकिल जो ये आ रहा है, इसमें ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ कोई पॉइंट C ले लो जी, सानू क्लीयर हो जाएगा, ये C ले लो पॉइंट, इतने कोई पॉइंट ले लो जी D, ठीक है, ACBDA, तो ये किस दे इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ साइक्लिक पाथ, एरिया ऑफ साइक्लिक पाथ जो है केड़ा एरिया है ACBDA, पूरे साइक्लिक पाथ एरिया। इसका मतलब जे असी इस तरह के साइक्लिक प्रोसैस का वर्क डन कैलकुलेट करना है तो उनके लिए सानू की करना पएगा, तो उनके लिए असी की करना है जी, उस साइक्लिक पाथ का एरिया कैलकुलेट कर लेना है, तो वो साढ़े कोले की आ जाएगा जी, साढ़े कोले वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। वो आ जाएगा जी वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसैस, ठीक है। इस ते बेस्ड ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਾਥਸ ਹੋਣਗੇ, 2-3 ਪਾਥ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਦੇਖੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਟੇਕ a thermodynamic system is taken from the original state to an intermediate state by the linear process as shown in figure। तो एक डायग्राम गिवन है जिस दे विच प्रोसेस D to E जा रहा है, E to F जा रहा है, F to D जा रहा है, तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, देखो, ठीक है। तो इट्स वॉल्यूम इज देन रिड्यूस्ड टू ओरिजिनल वैल्यू फ्रॉम E to F by an isobaric process। calculate the work done by the gas from D to E, from E to F, from D to E to F ਇਹ वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो इन्होंने तो इन्ना ही पूछा जी D to E, E to F वर्क डन कैलकुलेट करो, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ वर्क डन कैलकुलेट कर लेने D to E, E to F, F to E ਦੇ पूरे प्रोसेस ਦਾ वर्क डन टोटल करके, ठीक है। तो सब तो पहला ਅਸੀਂ फाइंड करते हैं फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम D to E, देखो किस तरह कैलकुलेट करांगे, वर्क डन फ्रॉम D to E, ठीक है। इसमें ਅਸੀਂ लिख सकते हैं W D to E DE, तो किस दे इक्वल होएगा,
देखो जो लास्ट टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ D to E ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਨ ਹੈ D to E ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਇਹ D to E ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ट्रायंगल ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ प्लस रेक्टेंगल ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ठीक है तो इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल DEF प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल केड़ी रेक्टेंगल जी ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ देखो DEF ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ GH ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ GH ਨੰਬਰਿੰਗ it is G and it is H ਤਾਂ रेक्टेंगल ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ रेक्टेंगल होगी FGHE रेक्टेंगल FGHE ਜਾਂ EFGH ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ रेक्टेंगल ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ट्रायंगल ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ट्रायंगल ਹੁੰਦਾ ਜੀ 1/2 ਇਨਟੂ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਜੋ ट्रायंगल ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ that is FE ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜੋ परपेंडिकुलर है that is DF ठीक है this is परपेंडिकुलर तो रेक्टेंगल ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो लेंथ है that is GH जो ब्रेड्थ है that is F2G FG ठीक है जी ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/2 इनटू FE जो F2E है F2E ठीक है वो G तो H ਦੇ इक्वल है FE is equal to GH ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 5 - 2 ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ GH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਇਟ ਇਜ਼ 5 - 2 ਇਹ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਨਟੂ DF जो DF की वैल्यू है इट इज 600 - 300 600 - 300 मतलब 300 आ जाएगी जी सॉल्व करके प्लस जो रेक्टेंगल दे रही है GH फिर हो गया जी 3 इंटू FG की वैल्यू होगी 300 - 0 इंटू 300 इसमें सॉल्व करो जी ठीक है 5 - 2 हो गया जी 3/2 इंटू 600 - 300 हो गया जी 300 प्लस 900 तो इसमें सॉल्व करांगे 150 इंटू 3 ये हो गया जी 450 प्लस 900 तो आंसर आ गया जी 1350 जूल ठीक है जी ये वर्क डन आ गया साढ़े कोले वर्क डन फ्रॉम D to E ठीक है हुण असीं कैलकुलेट करना है वर्क डन फ्रॉम E to F ठीक है वर्क डन फ्रॉम E to F क्या होगा जो इस दे अंडर एरिया देखो नोट करो E to F जो लाइन है ये वाली तो लाइन ये चेंज नाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये E to F है ठीक है इस दे अंडर जो एरिया है मैं इस तरह लाइनस नाल शेड कर रहा तो कल्ली रेक्टेंगल का एरिया ठीक है दूजी गल E to F जो है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है E to F वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो कंप्रेशन है तो इसका वर्क डन नैगेटिव होएगा जो D to E है ये एक्सपेंशन है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसका एरिया जो असी पॉजिटिव लिया वर्क डन पॉजिटिव आया ठीक है जो वर्क डन फ्रॉम E to F है ये नैगेटिव आएगा तो वर्क डन फ्रॉम E to F ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ WEF ठीक है ये किस दे इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH ठीक है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी ऊपर कैलकुलेट किया ही है जी 900 ठीक है यही वैल्यू आएगी GH इंटू FG ये हो जाएगा जी -900 जब ठीक है ये आ गया जी वर्क डन फ्रॉम E to F चलो हम सानू पूछा नहीं गया वैसे असीं फाइंड करिए जी वर्क डन फ्रॉम F to D फाइंड करिए तुसीं दस सकदे हो कितना होएगा वर्क डन फ्रॉम F to D तो वर्क डन फ्रॉम F to D कितना हो जाएगा क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वॉल्यूम नहीं चेंज कर रहा देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है जो चेंज आती ना F to D तो आइसो वॉल्यूमिक प्रोसैस हो गया देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम सो वर्क डन इज 0 ठीक है तो ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ बिकॉज V is equal to कांस्टेंट
V ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 2.0 ਵੋਲਿਊਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ W ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ WDE प्लस WEF प्लस WFD। तो टोटल वर्क डन हो गया। WDE असी कैलकुलेट किया जी 1350, ये कैलकुलेट किया जी -900, ये कैलकुलेट किया जी 0। तो इसमें सॉल्व करके साढ़े को आ गया जी वर्क डन जोड़ा है दैट इज इक्वल टू 450 जूल। ठीक है जी, ये असी टोटल वर्क डन कैलकुलेट किया। बट टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने का एक होर फॉर्मूला भी सी देखो, असी होर किहड़े मैथड दे नाल टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं दस्सिया सी कि जे तुसी सारे प्रोसैस का DEF साइक्लिक प्रोसैस का वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसैस किस दे इक्वल होएगा? वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसैस असी एक लाइन दे विच भी इसनूं सिंगल कैलकुलेट कर सकते हैं कि दिस वर्क डन is equal to area of this closed path DEFD is equal to area of right angle triangle DEF जो DEF है। ठीक है, इसका एरिया असी कैलकुलेट कर चुके हैं जी पहले DEF का, ये असी कैलकुलेट किया जी इतने 450। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कैलकुलेट किया ना 450, तो आ जाएगा जी 450 जूल। इसनों कैलकुलेट कर लेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके। ठीक है, इसनों करना तो इस तरह कर सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया जी FE इंटू DF, ये असी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इज इक्वल टू 450 जी। ठीक है जी, तो डायरैक्ट असी इस तरीके नाल भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस चीज़ का एरिया जो इन्नी डायग्राम का एरिया है दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसैस। ठीक, पहला असी कैलकुलेट किया जी इन्होंने पार्ट्स डिवाइड करके DE एक्सपेंशन, फिर EF कंप्रैशन, फिर FD जो है साढ़े कोले आइसो वॉल्यूम का प्रोसैस है, इसका वर्क डन 0 है, असी डायरैक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हुण साइक्लिक प्रोसैस दे विच किवें पता लगेगा कि वर्क डन पॉजिटिव है या नैगेटिव है? असी इसनूं किस तरह पॉजिटिव लिया? चलो इत्थे तक एक्सपेंशन करके असी पॉजिटिव किया जी D2E का, इत्थे कंप्रैशन करके नैगेटिव किया E2F का। हुण ये किवें पॉजिटिव होएगा? देखो जो क्लॉकवाइज है चेंज इस तरीके नाल PV ग्राफ बने हैं, जो क्लॉकवाइज है ठीक है, तो ऊपर वाली जी एक्सपेंशन होएगी, नीचे वाली कंप्रैशन होएगी। ठीक है, उसका एरिया घट होएगा तो टोटल नैट जो पॉजिटिव आएगा। तो जो एंटी क्लॉकवाइज है ठीक है, फिर हो जाएगा जी नैगेटिव हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, तुसीं इहनूं करके देखो, एंटी क्लॉकवाइज इसका पाथ चेंज करके देखो तो नैगेटिव आएगा। तो आई होप कि तुहानूं ये अज दा टॉपिक जो है कि असीं ग्राफ तो वर्क डन किस तरह कैलकुलेट करना है समझ आ गया होएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।